મુંબઈ દ્વારા રાજભવનને આંગણે ગુણવંતા ગુજરાતીઓનો વ્યાપાર ઉદ્યોગ, સમાજ સેવા વગેરે વિવિધ ક્ષેત્રોમાં પોતાની તેજસ્વી પ્રતિભાલક્ષી મંચ પૂરો પાડતી સંસ્થા ગુજરાત ફોરમ દ્વારા યોજાયો છે. વિશેષ ઉલ્લેખનીય છે કે આ સમારોહ રાજભવન મલબાર હિલ ને આંગણે યોજાઈ રહ્યો છે. મહારાષ્ટ્રના રાજ્યપાલ માનનીય શ્રી ભગતસિંહ કોશિયારજીના વરદ હસ્તે શનિવાર તારીખ 30મી જુલાઈ 2022ના દિને સાંજે 5 વાગે સન્માનિત મહાનુભાવ પ્રશસ્તિ પત્ર દ્વારા અભિવાદન કરવામાં આવશે. ગુજરાતીઓ સર્વત્ર અને સર્વ ક્ષેત્રોમાં ટોચના સ્થાનોએ કાર્યરત છે. રાષ્ટ્રીય કક્ષાએ ગુજરાતીઓ માટેના કાર્યક્રમો થયા હોય એવું જલા રાજભવનના આંગણે એક ભવ્ય કાર્યક્રમનું આયોજન કર્યું છે, જેમાં મહારાષ્ટ્રના રાજ્યપાલ માનનીય શ્રી ભગતસિંહ કોશિયારજીના વરદ હસ્તે જુદા જુદા ક્ષેત્રના કુલ 12 ગુજરાતી મહાનુભાવોનું શનિવાર 30 જુલાઈ 2022 આ આયોજન વિશે જણાવતા સતત ગુજરાતી કલા, સાહિત્ય અને સંસ્કૃતિ માટે વિવિધ કાર્યક્રમો કરતી સંસ્થા ગુજરાતી સાંસ્કૃતિક ફોરમના સંસ્થાપક શ્રી ગોપાલભાઈ પારેખ કહે છે, આઝાદીના અમૃત મહોત્સવના અવસરનું સંચાલન પ્રોફેસર શ્રી અશ્વિનભાઈ મહેતા કરશે. કાર્યક્રમ વિશે માહિતી આપતા સંસ્થાના મેન્ટોર શ્રી વિનેશભાઈ મહેતા કહે છે, રાજભવનમાં પ્રથમ જ વાર ગુજરાતીઓને સન્માનિત કરતો કાર્યક્રમ યોજાઈ રહ્યો છે. અમે 12 ક્ષેત્રોની 12 પ્રતિભાશાળી પર્સનાલિટીઓને આ એવોર્ડ માટે નોમિનેટ કરી છે, જેમનું અસલ ગુજરાતી ઢબે બાંધણીના સાફા અને ખેસ પહેરાવી વેલકમ કરવામાં આવશે, તેમજ એવોર્ડ અને પ્રશસ્તિપત્રથી નવાજવામાં આવશે. આ સન્માન સમારંભમાં અભિનય, વ્યાપાર, રંગભૂમિ, પત્રકારત્વ, સંગીત, સમાજ સેવા, અવકાશ વિજ્ઞાન, મેડિકલ સાહિત્ય જેવા ફિલ્ડમાં પોતાની કામગીરી બજાવી રહેલી હસ્તીઓના સન્માન સાથે ગુજરાતી સંસ્કૃતિના કાર્યક્રમો પણ યોજાશે. જેના વિશે વાત કરતા સંસ્થાના પ્રમુખ વિજયભાઈ પારેખ કહે છે, ગુજરાતીઓને સન્માનિત કરવા માટે થતો આ કાર્યક્રમ ભવ્ય અને યાદગાર બને એ માટે અમે કાર્ય કરી રહ્યા છીએ, જેનાથી દેશ વિદેશમાં દેશ અને સમાજ માટે યોગદાન આપી રહેલા પ્રતિભાશાળી ગુજરાતીઓને ચોક્કસ વધુ પ્રોત્સાહન મળશે. આ સમારંભમાં સન્માનિત થતા મહાનુભાવો અને તેમના કાર્યક્ષેત્રની યાદી આ મુજબ છે. શ્રી દિલીપ જોશી, અભિનય ક્ષેત્ર. સુશ્રી ફાલ્ગુની પાઠક, રાસ ગરબા, કૃષ્ણ ભક્તિ ગીતો. શ્રી વિનેશ મહેતા, વ્યાપાર. શ્રી પ્રવીણ સોલંકી, રંગભૂમિ. શ્રી કુંદન વ્યાસ, પત્રકારત્વ. શ્રીમતી હંસાબહેન બાલકૃષ્ણ મહેતા, સમાજ સેવાર્થે અનુદાન. ડૉક્ટર શ્રી જે રાવલ, અવકાશ વિજ્ઞાન.
डॉक्टर श्री कुलीन कोठारी नेत्र चिकित्सा, श्री अंकित त्रिवेदी साहित्य, श्री अशोक मेहता उद्योग, खुशवी गांधी प्रशासन सेवा, श्री विपुल मेहता समाज सेवा। आ कार्यक्रम फक्त आमंत्रित माटे छे। आ समग्र समारंभનું લાઈવ પ્રસારણ ગુજરાતી સાંસ્કૃતિક ફોરમની યુટ્યુબ ચેનલ પર જોઈ શકાશે. અસ્તુ, ધન્યવાદ. राज्यपाल श्री के साथ फोरम के सूत्रधार प्रमुख विजय भाई पारेख, संस्थापक गोपाल भाई पारेख, मानद मंत्री जयेश भाई पारेख, राज पुरोहित जी, मेहता, आप सभी से मेरी प्रार्थना है कि दीप प्रागट्य के लिए आगे आए। शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योति ही नमोस्तुते। दीप ज्योति परब्रह्म दीप ज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापम दीप ज्योतिर्जमोस्तुते। मैं आप सभी से नेशनल एंथम के लिए, राष्ट्रगीत के लिए खड़े होने के लिए विनती करूंगा। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय हो, जय हो। मैं गुजराती सांस्कृतिक फोरम के सूत्रधारों को विनती करूंगा कि परम आदरणीय राज्यपाल श्री का स्वागत करेंगे। सबसे पहले इस संस्था के संस्थापक गोपाल भाई पारेख से मैं विनती करूं कि पाघ और शाल से आप आदरणीय राज्यपाल श्री जी का स्वागत करेंगे। आइए, पाघड़ी અને શાલથી ગોપાલભાઈ પારેખ સંસ્થાપકને વિનંતી। जोरदार तालियों से इनका स्वागत हो। शॉल अर्पण करेंगे विजय भाई पारेख। मैं संस्था के मानद मंत्री जयेश पारेख से विनती करूं कि इनको खेस उपरणानी प्रसादी।
बजाना खेस थी। आदरणीय राज्यपाल श्री जी स्वागत। और फोरम के प्रेसिडेंट विजय पारेख से मैं विनती करूंगा कि बुके और मोमेंटो से बुके मोमेंटो से कोषाध्यक्ष धर्मेश भाई मेहता और जॉइंट सेक्रेटरी विपुल मेहता से मेरी विनती है कि श्रीमद् भगवत गीता की एक प्रत आप आदरणीय राज्यपाल श्री को अर्पण करेंगे। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। वाह। हम चाहते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता की शिक्षा हमारे यहाँ भी प्राथमिक माध्यमिक स्कूल्स में शुरू की जाए। बहुत अच्छी बात है। ऑडियंस से विनती है हाँ जी कि स्टैंडिंग ओवेशन के साथ फिर एक बार आदरणीय राज्यपाल श्री का जोरदार करबद्ध तालियों से स्वागत। यहाँ पर मोमेंटो के लिए विजय भाई प्लीज। वाह। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री द्वारिकाधीश की। बहुत अच्छा। सावन का महीना है और हरि और हर की आराधना का महीना है, तो बहुत ही अच्छी बात है कि श्री कृष्ण की प्रतिमा यहाँ पर अर्पित हुई है। मैं बहुत ही संक्षेप में हमारे सूत्रधारों का परिचय देना चाहूँगा। फोरम के हमारे संस्थापक गोपाल भाई पारेख जो इनके फाउंडर रहे हैं, और यह पूरी संस्था 5 साल पहले जिस तरह से शुरू हुई, कपोल मित्र जिनकी शताब्दी अभी अभी यहाँ पर हम लोगों ने मनाई, इनके भी ये तंत्री हैं। इनके साथ हैं फोरम के प्रमुख विजय भाई पारेख एक्सपोर्ट्स के सुकानी हैं, और साथ साथ घाटकोपर कपोल महाजन के प्रमुख हैं। मेडिकल एजुकेशनल और आर्थिक सहायता इनकी संस्था कर रही है। अक्षय तृतीया के दिन घाटकोपर कपोल महाजन ने घाटकोपर बालकंजी बारी में मेडिकल और वेलनेस सेंटर का भी शुभारंभ किया हुआ है। फोरम के मानद मंत्री जयेश भाई पर अभी जयेश भाई के बारे में मैं इतना ही कहूँगा कि यहाँ तक राजभवन तक हम जो आ पाए हैं, ये पूरे समूचे प्रोग्राम की संकल्पना और परिकल्पना जो की थी वो आदरणीय जयेश भाई पारेख ने की है। स्मॉल सेविंग एजेंट्स एसोसिएशन और श्रीजी फाउंडेशन के ये प्रमुख भी हैं। फोरम के जॉइंट सेक्रेटरी विपुल भाई मेहता हैं, जो घाटकोपर कपोल महाजन के ट्रस्टी हैं और मेडिकल सेंटर के जॉइंट सेक्रेटरी हैं। बीएमसी हॉस्पिटल में ब्लड डोनेशन कैंप और मेडिकल कैंप भी करते हैं, और प्रज्ञाचक्षु लोगों की सेवा और वृद्धाश्रम के साथ भी जुड़े हुए हैं। फोरम के खजांची हैं धर्मेश भाई मेहता, कपोल वाइब्रेंट ग्रुप के पूर्व सेक्रेटरी हैं और सामाजिक सत्कार्यों के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। और हमारे सबके जो मेंटर हैं, पथ निर्देशक हैं, ये हैं आदरणीय विनेश भाई मेहता। फार्म के अध्यक्ष हैं, इनके बारे में कुछ मैं ज़्यादा बातें बाद में करूंगा, लेकिन सबसे पहले एक विधि परंपरा ऐसी रहती है कि हम स्वागत करते हैं आप सबका। तो स्वागत संभाषण के लिए मैं संस्था के सेक्रेटरी जयेश भाई पारेख से विनती करूं कि आप सबका विधिवत स्वागत करें। સ્વાગતમ સ્વાગતમ સ્વાગતમ। આજના સમારંભના પ્રમુખ અતિથિ માનનીય ગવર્નર સાહેબ શ્રી, તેમનું હું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું આજના આપણા તે
મુખ્ય અતિથિ છે એમના જ ઘરમાં આપણે એમને અતિથિ બનાવ્યા છે. ये गुजराती है जो आपके घर में आपको बहुत अच्छे, वाह भाई वाह. गुजराती सांस्कृतिक फोरम की ओर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं. और ऐसे राज्यपाल है जो संस्कृति के संवर्धक है, उन्होंने संस्कृति की अच्छी सेवा की है और हर तरीके से निपुण है. राजनीति में तो निपुण है ही, ताकि उन्होंने दुष्ट लोगों को, अपने जनता को ये बचाया है. उसी तरह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक रहे हुए गवर्नर साहब ऐसे हैं जिन्होंने हमारे जैसे छोटी संस्था को यहाँ तक आने का ये दिया. आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ. उसी तरह जो अवॉर्डीज है, ये अवॉर्डीज ने इतने गुजराती समाज के अंदर के प्रोमिनेंट लोग हैं, अलग अलग क्षेत्र के, कोई ड्रामा के, कोई अभिनय के है, कोई बिजनेस के है, कोई सोशल वर्क में है, कोई प्रशासन सेवा में है. तो ये सब लोगों का भी हार्दिक स्वागत करता हूँ. और आप लोगों ने, दिलीप भाई जोशी, आपके लिए तो मैं खास कहूँगा कि आपने ये अवार्ड स्वीकार कर हमें अवार्ड दिया है. तो ऐसे लोगों का भी सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ. सभी मेहमानों का हार्दिक स्वागत करता हूँ. बहुत बहुत आज के कार्यक्रम की शुरुआत बहुत शानदार हो रही है. बहुत बहुत जय श्री कृष्ण. बहुत ही संक्षेप में मैं आदरणीय श्रीमान भगत सिंह कोश्यारी जी का परिचय देना चाहूँगा. आदरणीय राज्यपाल श्री का जन्म उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र के एक गांव में हुआ. हाँ नहीं, हमारा भी एक प्रोटोकॉल ऐसा है कि आपका जब तक हम परिचय न करें, बहुत ही संक्षेप में. आपने आगरा विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में आचार्य की उपाधि प्राप्त की. प्रारंभिक शिक्षा काल में ही आपने जीवन को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए समर्पित किया. वर्ष 2005-7 के बीच आप भारतीय जनता पार्टी के उत्तराखंड राज्य प्रमुख थे. आपने उत्तराखंड के ऊर्जा, सिंचाई, कानून और विधायी मामलों का मंत्री पद भी संभाला है. 2001 में आप उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने. भाजपा के राज्य अध्यक्ष का पदभार भी आपने संभाला. बहुभाषी, बहुसांस्कृतिक और बहुधार्मिक, यानी कि कॉस्मोपॉलिटन सिटी का दर्जा इस मुंबई शहर का है. इस शहर के दर्जे को आपने इतनी अच्छी तरह से संभाला है. हमें इस बात की खुशी है कि ये राजभवन है और मयूर भवन भी हैं, क्योंकि जितने मोर मुंबई में बचे हैं शायद सब यहाँ पर ही हैं. और मयूर वाहिनी तो भगवती शारदा है. तो यहाँ ये राजभवन का जो परिसर है, वो जहाँ जहाँ सांस्कृतिक एक्टिविटीज़ होती हैं, कला और साहित्य की बात होती है, तो उनको प्रोत्साहित करने के लिए आप श्री हमेशा सदैव तत्पर रहते हैं. इस बात की हमें बहुत बहुत खुशी है. गुजराती सांस्कृतिक फोरम, गुजराती होना, इस महानगर में 40 लाख से ज़्यादा गुजराती बस्ती है. और हमारे यहाँ सर्वतोभद्र सारस्वत उमाशंकर जोशी ने कहीं पर कहा था कि एते केवो गुजराती जो होय केवल गुजराती. वो गुजराती कैसा जो सिर्फ गुजराती है, जिसके पास, गुजरात के पास सर्वाधिक लंबा समंदर का किनारा है साहब. और व्यापार पूरी दुनिया में गुजरातियों ने किया है. तो गुजराती की एक पहचान व्यापार है, दूसरी पहचान द्वारकानाथ श्री कृष्ण, ये भी हमारी पहचान है. एक मोहन द्वारका में था, दूसरा मोहन पोरबंदर में हुआ. मोहनदास करमचंद गांधी, ये भी गुजराती की पहचान है. लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल भी गुजराती की पहचान है. और आज वही परंपरा को बरकरार रखते हुए दिल्ली में हमारे सबके प्यारे पंत प्रधान आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी, नराणाम इंद्र इति नरेंद्र साहब, वो विराजमान हैं. इस बात का हमें बहुत ही गौरव है और यही परंपरा बरकरार रही है. आज फोरम का ये सौभाग्य है कि इतने सारे गुजराती जो दुनिया भर में फैले हुए हैं, लेकिन मुंबई में
ये 12 गुजरातियों का चयन किया गया, फोरम के सूत्रधारों ने किया, और इस तरह से किया कि व्यापार हो, समाज सेवा हो, साहित्य हो, संगीत हो, अभिनय हो, सभी क्षेत्र में जिनकी महारत है, ऐसे ऐसे लोगों को यहाँ पर इकट्ठा किया है। बहुत ही बड़ी बात है, ये सब यहाँ पर आए हैं और फोरम को अनुग्रहित किया है, और आप सबकी प्रेरक उपस्थिति के साथ राज्यपाल श्री के करकमलों से यहाँ पर आपको अवार्ड्स, सम्मान और प्रशस्ति पत्र दिया जा रहा है। इस बात की मैं खुशी प्रकट करते हुए आज का जो मुख्य समारोह है वो शुरू करना चाहूँगा। जिनका जिनका नाम यहाँ पर मैं लूँ, आपसे मेरी विनती है कि आप बराबर मेरे राइट साइड पर, दाहिनी बाजू ओर से आप मंच पर आएंगे, आपका राज्यपाल श्री सम्मान करेंगे, आप वहीं से नीचे आएंगे, और बाद में जहाँ जहाँ मैं नाम लूँगा एक छोटा सा परिचय, ये हमारी एक ज़रूरत बनती है कि यहाँ जो भी हैं वो कौन हैं, हूँ हम सब जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं सबसे पहले निमंत्रित करना चाहूँगा सीनियर मोस्ट 80 साल के हमारे ज्ञान वृद्ध ऐसे पत्रकार। कलम देश की बड़ी शक्ति है, दिलों में भाव जगाने वाली, दिलों में भाव ही नहीं दिमागों में आग लगाने वाली। जेफरसन ने कहा था कि आई वुड प्रिफर न्यूज़पेपर देन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट नहीं होगी तो चलेगा, लेकिन चौथी जागीर जो है वो होनी चाहिए। तो ये 50 सालों से निष्पक्ष, निर्भीक, मूल्यनिष्ठ पत्रकार एवं तंत्री महोदय के रूप में आप प्रथित यश हैं। कुंदन भाई व्यास जन्मभूमि ग्रुप के समाचार पत्रों के आप सक्षम संपादक हैं और सीईओ हैं। मैं विनती करूंगा कुंदन भाई से मंच पर पधारें और राज्यपाल श्री अवार्ड्स और प्रशस्ति पत्र इनके हाथों से दिया जाए। दूसरे सम्मानार्थी हैं दिलीप जोशी जी, आइए। हाँ, दिलीप जोशी, मैं विनती करूं, तारक मेहता का उल्टा चश्मा से जिन्होंने 3000 से भी ज़्यादा एपिसोड करके गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जिन्होंने अपना नाम दर्ज किया है, सबसे लंबी धारावाही रही है, आइए। गुजराती रंगमंच पर नाटक की विविध भूमिकाएं की हैं। इंडियन वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित करने के बाद इंडियन टेली अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर इन अ कॉमिक रोल आपको नवाजिश किया गया है। डॉक्टर कुलीन कोठारी साहब, आइए। अभिनय रत्न अवार्ड के बाद डॉक्टर कुलीन कोठारी नेत्र दीपक अवार्ड। 1 लाख से ज्यादा प्रज्ञाचक्षुओं की अंधकार भरी जिंदगी में दृष्टिदान देकर रोशनी का उजाला आपने किया है। विजन फाउंडेशन ऑफ इंडिया के तहत आपने कैटरेक्ट ऑपरेशन के लिए भी बहुत बड़ी सेवा का काम किया है। नेत्र दीपक अवार्ड। प्रवीण भाई सोलंकी नाट्य महर्षि अवार्ड। The function of playwright is to bring life into theatre and theatre to life. रंगमंच और हमारे जीवन को, संबंध को घनिष्ठ करने वाले ये लेखक, 200 से ज़्यादा जिन्होंने नाटक लिखे, सीरियल्स लिखी, हाँ, गुजराती फिल्म की भी पटकथाएं लिखी हैं, इनका स्वागत हम करने हैं। उन्होंने लिखा है कि હું નાટકમાં નાટક થઈને ભળી ગયો છું। આટલા વર્ષોની આ સાધના છે। श्रीमान अंकित त्रिवेदी कलम कस्बी अवार्ड के लिए निमंत्रित करता हूं। अंधकार है वहां जहां आदित्य नहीं है, मुर्दा है वह देश जहां साहित्य नहीं है। इतने बड़े साहित्यकार, अच्छे वक्ता, सभा संचालक, संपादक
કાનજીના મોબાઈલમાં રાધાનો રિંગટોન વાગે કે જન્મો જન્મની ઘેલી રાધાની પ્રીત કાનજીના રૂવાડે જાગે ને રાધાનો रिंगटोन वागे। बहुत बढ़िया। व्यापार भूषण अवार्ड के लिए आदरणीय श्रीमान विनेश भाई मेहता, इस्पात इंडिया प्राइवेट के मैनेजिंग डायरेक्टर विनेश मेहता, फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र फार्म के अध्यक्ष हैं, बीमा के भी ये प्रेसिडेंट रह चुके हैं, आई बॉम्बे आयरन मर्चेंट्स एसोसिएशन के भी प्रमुख रहे हैं। श्रीमती हंसाबेन बालकृष्ण मेहता करुणामूर्ति अवार्ड के लिए सम्मानित की जा रही है। आइए हंसाबेन। हाँ, करुणामूर्ति अवार्ड मुंबई की मदर टेरेसा हैं। हाँ, हंसाबेन 94 साल की उम्र है और दादर की कमला मेहता ब्लाइंड स्कूल से लेकर कई सारी संस्थाएं जिनमें विकलांगों के लिए, प्रज्ञाचक्षुओं के लिए, छोटी छोटी बालिकाओं के लिए उन्होंने जो काम किया है, बहुत जोरदार तालियों के साथ स्टैंडिंग ओवेशन। हाँ जी। दिव्यांग महिलाओं और बच्चों के लिए आपने जो काम किया है, करुणामूर्ति अवार्ड गुजराती सांस्कृतिक फोरम की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आपके बहुत बहुत आभारी हैं। हंसाबेन आइए। डॉक्टर श्रीमान जे रावल साहब खगोल विशारद अवार्ड, दुनिया भर में अवकाश विज्ञानियों में अपनी प्रतिष्ठा एवं योगदान आपने दर्ज किया है। नेहरू प्लानिटोरियम और नेहरू सेंटर के डायरेक्टर की हैसियत से इंडियन प्लानिटरी सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में आपने काम किया है। सोलार और सैटेलाइट सिस्टम में शोध कार्य करने के लिए आपको बहुमानित किया है। गुजरात राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने भी आपका संस्कार किया हुआ है। आइए। प्रशासन सेविका अवार्ड खुशबू गांधी, आइए। बहुत छोटी आयु में सरकारी मुल्की अधिकारी बनना अपने आप में अनूठी उपलब्धि है। आइए। डेप्यूटी कमिश्नर टीडीएस की हैसियत से इंटेलिजेंस एंड क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में भी आपने काम किया है। टाइम्स ऑफ इंडिया में आप पत्रकार भी रह चुकी है। आइए। खुशबू गांधी प्रशासन सेविका अवार्ड। उद्योग रत्न अवार्ड श्रीमान अशोक मेहता। अशोक भाई ट्रेडिंग और बिल्डर्स के प्रोफेशन के साथ मैकेनिकल इंजीनियर बन के आपने वॉल पुट्टी का प्रोडक्शन शुरू किया। कारोबार इतना बढ़ा कि हर साल 2 फैक्ट्री का शुभारंभ करते थे। आज 6 राज्यों में 1500 कर्मचारी के साथ साथ 700 लोगों का स्टाफ। एक बहुत बड़ा काम बिल्डिंग मटेरियल की विविध प्रोडक्ट्स का 4000 टन से भी ज़्यादा दैनिक उत्पादन आप करते आए हैं। आदिवासी एरिया की 300 से ज़्यादा स्कूलों में आदिवासी बच्चों को निःशुल्क एजुकेशनल एड्स, पानी, पंखे, बेंच, डेस्क आपके द्वारा किया जाता है। बहुत बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक भाई। और श्रीमान विपुल मेहता समाज सेवा कार्य अवार्ड। परोपकाराय वहन्ति नद्यः परोपकाराय फलन्ति वृक्ष परोपकारार्थम इदम शरीरम। घाटकोपर कपोल महाजन के ट्रस्टी, मेडिकल सेंटर के जॉइंट सेक्रेटरी। ओमकार अंध सेवक सोसाइटी मातोश्री वृद्धाश्रम के कमेटी मेंबर भी हैं। हाँ, यहाँ पर स्वर सरिता अवार्ड जिनको दिया गया है वो हमारे जानी मानी दांडिया क्वीन, गरबा क्वीन और कृष्ण भक्ति के पदों से जो पूरी दुनिया में फेमस हैं, फाल्गुनी पाठक जी आज यहाँ पर संयोगवश आ नहीं पाई है, लेकिन हम इनका स्वागत करते हैं। और इनके कोई भी परिवार में से या कोई सदस्य यहाँ पर मौजूद हैं तो मैं विनती करूँगा कि इनका स्वर सरिता अवार्ड ग्रहण करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आज विपुल भाई, ओके, विपुल भाई मेहता से मैं गुजारिश करूंगा कि यह अवार्ड आप ले।
स्वर सरिता अवार्ड विपुल भाई मेहता फाल्गुनी पाठक के तहत आइए। फाल्गुनी पाठक का नाम मैं लेता हूं तो मावतर मळे तो मने एवा मळे अंबा जेवा मळे एक एक थी चढ़ियाता गरबाओने रास आखी दुनिया में जणे जाणीता कर्या छे पण आज ए अमेरिका थी आव्या पछी तरत ज रोकायेला होवाने कारणे संयोगवश અહીં આવી શક્યા નથી। એમનો એવોર્ડ સ્વર સરિતા એવોર્ડ વિપુલભાઈ મહેતાને સ્વીકારવા માટે વિનંતી કરું, જે અમારા જોઈન્ટ સેક્રેટરી પણ છે। આવો। और मैं सभी सम्मानित महानुभावों के प्रतिनिधि रूप यहाँ पर हमारे जाने माने टीवी आर्टिस्ट और अवार्ड रेसिपिएंट्स जो हैं आदरणीय दिलीप भाई जोशी से विनती करूंगा कि आपकी प्रासंगिक प्रसन्नता यहाँ पर आप व्यक्त करें। आइए दिलीप भाई जोशी, कोई परिचय के मोहताज नहीं है, मैंने अभी अभी इनके बारे में जो बताया। आइए। जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण। माननीय आदरणीय गवर्नर साहब भगत सिंह जी और यहाँ उपस्थित सभी मान्यगण, गुजराती सांस्कृतिक फोरम के पदाधिकारी गोपाल भाई, विजय भाई, जयेश भाई, धर्मेश भाई, विनेश भाई, बहुत गर्व महसूस हो रहा है हम सबको कि आप सब ने हमें सम्मानित किया। एक ऐतिहासिक जगह में ऐतिहासिक व्यक्ति के हाथों हमें ये सम्मान प्राप्त हुआ है और हम सब वाकई में बहुत ही गर्व महसूस कर रहे हैं, एक गुजराती होने का, एक भारतीय होने का और महाराष्ट्र में रहने का, क्योंकि महाराष्ट्र में रहकर महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री के हाथों ये सम्मान मिलना वाकई में बहुत बड़ी बात है। बहुत ही मेरा जन्म मुंबई में ही हुआ है और आज मेरी आयु करीब 57 साल है, लेकिन आज तक कभी गवर्नर हाउस में आने नहीं मिला था। देखा नहीं था। शायद हम लोगों में से कई ऐसे लोग होंगे जो पहली बार इस ऐतिहासिक जगह में आए होंगे, लेकिन बहुत ही आनंद और बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है और आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जय स्वामीनारायण। और मैं फोरम के प्रमुख विजय भाई पारेख को निमंत्रित करूंगा। आइए और पूरी प्रास्ताविक यहाँ पर आप प्रस्तुत करें। विजय भाई के बारे में इतना ही कहूँगा कि चले तो हवा, रुके तो चांद जैसा है, ये वो इंसान है जो धूप में मिले तो छाँव जैसा है। साहब बहुत ही बढ़िया काम 5 साल में जिस तरह से आपने किया। विजय भाई पारेख। सर, आपकी परमिशन हो तो मैं गुजराती में बोलूँ? गुजराती सांस्कृतिक फोरम છે, આપણે ગુજરાતી વાપરવું જરૂરી છે। સૌથી પહેલાં તો આપણે આપ શ્રી અશ્વિનભાઈ મહેતાને પણ આપણે અત્યારે યાદ કરવું જોઈએ। એમનું સંચાલન જે કર્યું છે એમને છેલ્લા 35 વર્ષથી પોતે આપણે હેડ ઓફ ધ ડિપાર્ટમેન્ટ રહ્યા છે, મીઠીબાઈ કોલેજમાં પ્રોફેસર રહ્યા છે, ફિલ્મ ડિવિઝનમાં પણ કોમેન્ટ્રી કરી છે અને દેશ વિદેશમાં પણ લગ્નવિધિ અને ઓનલાઈન બધા કાર્યક્રમો કર્યા છે। આપણે સાહેબશ્રીને વિનંતી કરીએ કે એમને બુકેથી એમનું થોડું સન્માન કરે આપણા બધા વતી, કારણ કે એમની જે વાણી છે એ વાણીએ આજે રંગ રાખ્યો છે। ઓકે, નમસ્કાર બધાને, જય શ્રી કૃષ્ણ। મંચ પર ઉપસ્થિત મહારાષ્ટ્ર રાજ્યના માનનીય રાજ્યપાલ
શ્રી ભગતસિંહજી કોશિયારીજી, મારા સહપાઠીગણ, અહીં ઉપસ્થિત મહાનુભાવો, રાજ્યભવનના હોદ્દેદારો તેમજ કાર્યક્રમને માણનારા પ્યારા જીએસએફ સભ્યો, શ્રોતાજનો, આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. અમારું મન ભરી લીધું અને અંતર પણ ભરી લીધું. આપ સૌ મહાનુભાવો પધાર્યા અહીં અને રાજભવનનો આ સભાગૃહ ભરી દીધું. बहुत अच्छे, वाह भी वाह वाह. ગુજરાતી સાંસ્કૃતિક ફોરમ માટે આજનો દિવસ એક ઐતિહાસિક યાદગાર છે. આપણા ફોરમનું પરમ સૌભાગ્ય છે કે રાજભવનના આંગણે માનનીય રાજ્યપાલ શ્રી ભગતસિંહ કોશિયારીજીની ઉપસ્થિતિમાં વિવિધ ક્ષેત્રોમાં યશસ્વી સિદ્ધિઓ હાંસલ કરનારા મહારથીઓનું વરદ હસ્તે સન્માન કરવામાં આવ્યું છે. એનો શુભ અવસર અમને મળ્યો છે. અમારા માટે અને ગુજરાતી સમાજ માટે પણ એક અનોખી અનુપમ સંસાર ઘટના છે. ફોરમની 5 વર્ષની કારકિર્દીમાં ગુજરાતી સાહિત્ય, સંસ્કૃતિ, લોકસંગીત જેવી પ્રવૃત્તિને આજે વિશેષ યશ કલગી પ્રાપ્ત થઈ છે. રાજ્યપાલ શ્રીએ ફોરમ દ્વારા આ સન્માનનું મૂલ્ય મહિનમાં અનેક ગણો વધારી દીધો છે. અવર કલ્ચર, અવર લેંગ્વેજ, અવર વેલ્યુ એન્ડ અવર ઓરિજિનલ આઇડેન્ટિટી, આપણી ઓળખાણ ગુજરાતી છે. એ વાતનું આપણને સૌને ગર્વ છે. આપ સર્વે મહાનુભાવો અહીંયા પધાર્યા, એની અમારું સ્વીકૃતિને માન્ય કરીને આપ પધાર્યા, તેની માટે અમારી શ્રદ્ધાને દ્રઢભૂતિ કરું છું. આપ સૌ સન્માનથી મહાનુભાવોને ફોરન માન વંદના કરે છે. તો ચાલો સૌ સાથે મળીને બોલીએ, જય જય ગૌરવવંતા ગુજરાતીઓ, જય જય गौरवंता गुजराती. નમસ્કાર, જય મહારાષ્ટ્ર. मैं आदरणीय राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी जी को विनती करूं कि आपके आशीर्वाचन मिले, हमारा हौसला बढ़े और जिस संस्कृति के बारे में आप चाहक हैं, संस्कृति के, भारतीय संस्कृति के और सनातन संस्कृति के, यही संस्कृति निरंतर संवर्धित होती रहे, यही कामना के साथ आदरणीय श्री का वक्तव्य. गुजराती सांस्कृतिक फोरम घाटकोपर की ओर से आयोजित आज के इस सम्मान समारोह में हमारे आदरणीय गोपाल पारेख जी, गणेश मेहता जी, इसके सचिव भाई जयेश जी, विजय पारेख जी, राजपुरोहित जी, सभी बड़े बड़े लोग कितों के नाम लूँगा. तो यहाँ हमारे उपस्थित सभी आज जिन्होंने सम्मान प्राप्त किया है, जिनका रजिस्ट्रेशन किया गया है, ऐसे सभी आदरणीय जन, और विशेष करके हमारा सुंदर संचालन कर रहे हैं प्रोफेसर मेहता साहब, मैं आप सबका ये जो फोरम के ओर से जिन सब का जहाँ पर सम्मान किया गया, और ये मेरे को सौभाग्य मिला कि आप जैसे श्रेष्ठ व्यक्तियों का मुझे सम्मान करने का मौका मिला. तो आप सभी श्रेष्ठ जनों को मैं प्रणाम करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सबको अपने अपने क्षेत्र में जो ईश्वर ने सफलता के लिए शक्ति दी है, वो और अधिक आपको शक्ति प्रदान करें और आपके माध्यम से समाज के विभिन्न क्षेत्रों में आपका योगदान हो और हमारा समाज आगे बढ़े और हमारा हिंदुस्तान महान तो है ही, महानतर और महानतम बने, ये कल्पना और ये भावना करता हूँ. अभी मुझे लग रहा था कि जब मराठी में महाराष्ट्र के लोगों के बीच में कार्यक्रम होता है तो मैं उनसे कहता हूँ कि भाई अंग्रेजी मत बोलो, क्योंकि मैं भी थोड़ा पढ़ा हूँ, जानता हूँ, और मराठी में बोलो. लेकिन चलो जयेश जी ने बड़ी हिम्मत करी है और ये मराठी में बोले, गुजराती में बोले, तो मुझे ऐसा लगा कि मराठी समझने में तो 5-6-7 महीने लगे
अगर मैं गुजरातियों के बीच में रहूँ तो 5-6 हफ्ते में समझ जाऊँ। ऐसा मुझे ऐसा लगा। और स्वाभाविक है कि हम देश भर में, दुनिया भर में जाते हैं और हर एक समाज की अपनी विशेषता होती है, लेकिन कुल मिलाकर के देश एक प्रकार का, जिससे हम लोग आजकल बुके देते हैं ना अलग अलग ढंग से, हैं, पुष्प गुच्छ जैसा अपना देश है। और अलग अलग का विशेष करके जो हमारे कॉस्मोपॉलिटन टाउन्स हैं, सिटीज हैं, वहाँ एक अंतर करना बड़ा मुश्किल होता है। मैं जब यहाँ आया तो नागरी लिपि थी, तो मुझे मराठी में शपथ लेने में कठिन नहीं हुई, मराठी में विधानसभा में भाषण देने में कठिनाई नहीं हुई। तो मैंने थोड़ा थोड़ा मराठी सीखना शुरू किया, लेकिन बाद में मैंने देखा कि मेरे कर्मचारियों से मैं कहता है जरा मराठी में बात करो, तो वो सब बोलते हैं आपको देख के हिंदी आ जाती है। और बहुत से यहाँ CII ऐसे कितने अच्छे अच्छे चैम्बर्स हैं, बड़े बड़े लोगों के, आप लोगों में से कुछ लोग इसके सदस्य होंगे। ऐसे एक जगह मुझे बुलाते तो नेचुरली वहाँ अंग्रेजी में संचालन होता है, ज़्यादा भाषण अंग्रेजी में होते हैं। तो जब मैं उनसे कहता कि भाई यस आई कैन स्पीक ए लिटिल इंग्लिश बट आई प्रेफर टू स्पीक इन हिंदी, बोलो क्या करें? तो सब अंग्रेजी में बोलने वाले मुझसे कहते हिंदी में बोलो, और जब मैं हिंदी में बोलता तो खूब तालियां बजाते। अब मेरे हिंदी में बोलने में ताली बजाते हो तो अपना हिंदी क्यों नहीं बोलते हो, हैं? तो बहुत से लोगों ने हिंदी में, बाद में बड़े अच्छे लोगों ने, हमारे जिन्होंने कभी हिंदी में बोला नहीं होगा, मेहता साहब, तो वो भी हिंदी में बोलने लगे। तो एक प्रकार से हम सब लोग इस भारत में कुछ ऐसी एक अंदर से एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसी ताकत है जो हम सब लोगों को जोड़ती है, और उस जोड़ने के कारण से हम देश के किसी कोने में जाते हैं। और विशेष करके जब कल मैंने एक भाषण में कहा कि गुजराती, राजस्थानी, इनका यहाँ पर बड़ा योगदान है, पारसी का, राजनीतिक कारण से कुछ लोग बोले होंगे, उससे मुझे कोई कष्ट नहीं, उनका अपना अधिकार है, तो उसमें उनका अधिकार है। लेकिन उसके पीछे का मेरा एक ही कहना है कि हमारे कुछ समाज ऐसे हैं, जैसे जब आप उत्तराखंड के बारे में बात करोगे, पंजाब के बाद में बात करोगे, यानी कोई मराठा सैनिकों का योगदान कम ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा समझा जाता है कि अगर आगे कोई बलिदान के लिए आगे किस प्रकार से वीरों की जरूरत है तो नेपाल के गुरखा आकर के सबसे आगे लगाए जाते हैं, माना जाता है। अब ब्रिटेन वाले भी गुरखाओं को बुलाते हैं, उनकी भर्ती आजकल भी ब्रिटेन में होती है, मेरे यहाँ भी आजकल गुरखा रेजिमेंट है। ये कुछ विशेषता होती है, और इसलिए हमारे, मुझे उस दिन देख रहा था मैं मुंबई समाचार के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी थोड़ी शब्द गुजराती, तो हिंदी बोले बाद में, पर शुरू में थोड़ा गुजराती में बोले, तो जो ही गुजराती में बोले तो उन्होंने कहा गुजराती माने ऐसा क्या शब्द है वो आपके बोले थे, हैं? नहीं बढ़िया शब्द नहीं बोले, मतलब वो अच्छा शब्द बोले गुजराती में। तो ये एक नेचर होता है, सब एक होते हुए भी हर एक जगह का कुछ एक अलग अलग थोड़ा नेचर होता है। मैं जब महाराष्ट्र में लोगों से पूछते हैं कैसा तुमको महाराष्ट्र लगता है, तो मैं लोगों से कहता हूँ कि भाई मैं यूपी का सदस्य रहा हूँ उत्तराखंड के रूप में, लंबे समय तक रहे। उत्तराखंड तो अभी 20-22 साल पहले बना है, फिर बिहार है, नज़दीक में दिल्ली है, हरियाणा है, पंजाब है। तो वहाँ की अपेक्षा मैंने जब महाराष्ट्र में देखा तो मुझे लगा कि हमारा उत्तराखंड और महाराष्ट्र एक जैसा है। और अगर मैं, आप लोग मुझे अगर गुजरात बुलाते और मैं कहीं कच्छ में, काठियावाड़ में जाता, तो शायद लोग कहते भगत सिंह कोश्यारी अब तो बिल्कुल अपने पहाड़ में आ गया, क्योंकि यहाँ भी सीधे साधे बोले वाले ऐसे लोग हैं। तो ये कुछ नेचर होता है। तो एक प्रकार से हर एक का एक अपना करेक्टर है, पर ओवरऑल मिला करके हम लोगों का एक नेशनल करेक्टर है। हम कितनी भाषा बोलें, हम कितना ही वेशभूषा में भिन्न हों, लेकिन हमारी इच्छा रहती है कि हम बद्रीनाथ से जल लेकर के
रामेश्वरम में जाएं। हमारी इच्छा रहती है कि हम चारों धामों यानी बद्रीनाथ, नीचे रामेश्वरम, द्वारिकापुरी और अपना जगन्नाथपुरी, चारों धामों के दर्शन करें। ये प्रत्येक भारतीय की इच्छा रहती है। वो जानता नहीं भाषा, बोले नहीं जानता है। अब बताइए वहाँ, अब यहाँ छोड़िए, मैं जब नेपाल जाता हूँ, मैं मुक्तिनाथ अभी नहीं जा पाया, लेकिन वहाँ के लोगों ने कहा कि मुक्तिनाथ ये बहुत ऊंचाई पर है, अमरनाथ तो गया उससे भी ऊंचाई पर है, तो बोले कि साहब मुक्तिनाथ में सबसे ज़्यादा भारत के आने वाले लोग तमिलनाडु के होते हैं। अब आप कल्पना करिए कि कहाँ नेपाल का मुक्तिनाथ और कहाँ तमिलनाडु के लोग वहाँ जाते हैं। तो ये एक प्रकार का, जब कभी कहा जाता है कि भारत ईश्वर का देश है, ईश्वरीय देश है, तो इसमें कोई मुझे लगता अतिशयोक्ति नहीं है। लेकिन जीवन है, हम लोग इतना ज़्यादातर गुजरात, राजस्थान बहुत लोग बिजनेस करते हैं। बिजनेस में कभी हम आगे बढ़ते हैं, कभी पीछे हो जाते हैं। ऐसे ही समाज भी कभी बहुत उन्नति करता है, कभी थोड़ा पीछे हटता है, कभी और पीछे हटता है, फिर उठता है, फिर खड़ा होता है, फिर आगे बढ़ता है। तो हमारा समाज इस प्रकार से आगे बढ़ता रहता है। हम जब भी, मैं यहाँ उत्तराखंड के कार्यक्रमों में जाता हूँ, दिल्ली जाता था, मुझे हर जगह बुलाते हैं उत्तराखंड के कार्यक्रम में, तो मैं उन सबसे कहता हूँ कि भाई अपनी उत्तराखंड की पहचान बनाते हुए जहाँ जाते हो वहाँ की माटी की सुगंध में आनंद लो और वहाँ एकत्व हो जाओ, एक साथ हो जाओ। और ये विशेषता है हम लोग को, किसी भी समाज के, गुजरात हो, राजस्थान हो, पहाड़ हो, चाहे और कर्नाटक कहीं के भी हो। मैं यहाँ देखता हूँ कि बड़ी संख्या में मुझे केरल के लोग मिलते हैं। मैं उनके कार्यक्रम में गया, आप ताज्जुब करेंगे, मैं केवल एक तमिलनाडु वालों ने कहा कि नहीं नहीं गवर्नर साहब अंग्रेजी में बोलिए। मैंने केरल वालों से कहा बोलो आई कैन स्पीक इंग्लिश, तो बोला नहीं नहीं साहब हिंदी बोलिए। केरल समाज के लोगों के बीच में मेरा पारा भाषण ही हिंदी में हुआ, वो सब ताली बजा रहे थे। इसका अर्थ क्या है कि धीरे धीरे बिना किसी के जोर जबरदस्ती, बिना किसी के सरकार द्वारा जबरदस्ती किए हुए, अब आप इतनी सुंदर हिंदी बोल रहे थे, है नहीं, आपको तो सौभाग्य है। हम हिंदी वाले जो है ना, हमारे यहाँ तो सौभाग्य नहीं, हमारे यहाँ दुर्भाग्य, हिंदी के वाला कुछ जानते ही नहीं है। और यहाँ क्या है, यहाँ क्या कहते हैं, गुजराती, गुजरात से आकर के गुजराती जानता है, महाराष्ट्र में आकर के मराठी भी जानता है, वो हिंदी भी जानता है, और अंग्रेजी तो बिजनेसमैन है तो उसने बोलना ही है, क्योंकि दुनिया देश के लोगों के सामने अंग्रेजी बोलनी है। अब मेरे सामने विदेश के लोग आते हैं तो उनके सामने थोड़ी कहूँगा आप हिंदी में बात करो, तो अंग्रेजी बोलनी पड़ेगी। तो यहाँ काफ़ी लोग सब भाषाएँ, इतना बड़ा आनंद आता है कि हम सब लोग वास्तव में सौभाग्यशाली हैं। और एक प्रकार से हमारे श्री गणेशाय नमः कहते हैं ना, अब आप तो द्वारिकापुरी के हैं, पर यहाँ भी विठोबा भी कोई कम नहीं है। तो रुक्मिणी जी है, विठोबा है। तो एक प्रकार का ये जो साम्य है, अभी आप बोल रहे थे, तो ये सारे देश को हमारी संस्कृति जोड़ती है। और इसलिए जो आपने सांस्कृतिक फोरम बनाया है, कहने को तो आपका एक गुजराती सांस्कृतिक फोरम है, परंतु इस गुजराती सांस्कृतिक फोरम में पूरी भारतीय सांस्कृतिक फोरम की सुगंध आती है। और आप सब लोग हमारे देश को, समाज को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देते हो। और निश्चित रूप से मेरा विश्वास है हम सब लोग देश की एकता के नाते से अपने, जैसे हम अपने माता पिता का आदर करते हैं, तो ऐसे ही अपनी मातृभाषा, अपनी मातृभूमि जहाँ से आए हैं उसका सम्मान करते हुए भी, ये भी हमारा जहाँ है वो भी सब हमारा है, उनके भी वो भी हमारे सब अपने हैं और हम सब भी उनके हैं। ये जो हमारा राष्ट्रीयत्व का भाव है, ये जो हमारा भारतीयत्व का भाव है, ये जो हमारे एक प्रकार से, कभी कभी लोग कहते हैं दक्षिण में हिंदी का विरोध होता है। मैं जब कभी तमिलनाडु के अलग अलग शहरों में जाता हूँ तो शुभ लक्ष्मी के संस्कृत के श्लोक सुबह सुबह सब जगह चलते हैं, सुबह शुभ लक्ष्मी के। तो ये एक प्रकार की ऐसी चीज़ है कि जो इस देश को, इसीलिए दुनिया में कितने लोग आए, कितने आक्रमणकारी आए, लेकिन कभी पराजित हुए होंगे, कभी गुलाम भी हो गए होंगे,
लेकिन फिर अंत में उठे आगे उठे। और अभी आप मोहन की और मोहनदास करमचंद गांधी की और नरेन भाई की चर्चा कर रहे थे, तो उठते अब नरेन भाई ऐसा लगता है कि अवरेस्ट की ओर ही ले जाएंगे पूरा। पूरी संस्कृति अपनी जिस हिसाब से अपना काम कर रहे हैं और देश में जैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है, उससे लगता है कि हम निश्चित रूप से सारी विपरीत परिस्थितियों में आगे बढ़ेंगे। और उस सब में आप सबका बहुत बड़ा योगदान है। मेरा पूरा विश्वास है कि आगे भविष्य में भी आपका ऐसा योगदान जारी रहेगा। आप सबके दीर्घ जीवन की, आपके सफलता की कामना करता हूँ, आपके स्वास्थ्य की, शुभ रहने की, अच्छे रहने की कामना करता हूँ। और राजभवन राज पुरोहित को मैंने कह दिया तुम्हारा आगे तो राज हमेशा लगेगा। लेकिन मैंने कहा भाई इस राजभवन को मैंने पीएम से भी कहा, प्रधानमंत्री जी से भी, भाई इसका नाम अब लोक भवन रख दो। जनता के लोग आए, सब लोग आए। तो अब सुबह से मेरा ये तीसरा कार्यक्रम है, तो समझ लो कि अभी 80 साल के कौन थे मेरे सामने को आए थे, ये 80 साल वाले हैं, तो ये तो थक जाते। लेकिन मैं तो सुबह से शाम तक इसी कार्यक्रम में रहता हूँ। मुझे लगता है कि इस देश के अंदर हमारे इस राजभवन में लोगों के आने की इच्छा होती है। एक हमारे लिए कुछ नहीं है, हम संघ के कार्यकर्ता हैं, हमारे लिए कोई पद बड़ा नहीं होता, लेकिन सामान्य जिनकी इच्छा होती है, अच्छे व्यक्ति की भी इच्छा, बड़े बड़े पद की भी इच्छा होती है। हम राष्ट्रभवन देखें, राजभवन देखें, राष्ट्रपति भवन देखें, स्वाभाविक है। और आप सबके आशीर्वाद रहेगा तो निश्चित रूप से राजभवन लोक भवन का रूप लेगा। प्रधानमंत्री जी ने भी इस पर अपनी सहमति व्यक्त की है। आप सब यहाँ पर आए समय पर। अभी तो चाहे तो यहाँ नया बहुत सुंदर उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री कर गए हैं। पहले यह बंकर था, पहले तो पता ही नहीं था। मेरे से प्रोड्यूसर विद्यासागर राव ने पता लगाया कि यहाँ इतना अंग्रेजों के ज़माने का इतना बंकर भी है। अब उस बंकर में हम लोगों ने यहाँ के क्रांति गाथा का जो है एक सुंदर म्यूजियम सा बना रखा है। प्रधानमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया है। और मेरे साथ दिल्ली से मेरे अधिकारी आए, उनके दिमाग बहुत चलता है, अच्छा काम करते हैं। जो यहाँ की गुंडी देवी, इतना उस दिन कम से कम 10-20 हज़ार लोग आए थे। वो जो कोली समाज के और भी लोग आए थे, उनके दर्शन करने के लिए। मंदिर भी बहुत अच्छा बना रखा है। तो आप लोग जब चाहें घूमने आइए। और मोरपंखी तो भगवान को बहुत पसंद थी, मोहन को, कृष्ण जी को। तो मोरों का दर्शन करिए, मोरपंख का दर्शन करिए, आइए घूमिए। आपका हमेशा स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से स्टैंडिंग ओवेशन के साथ बहुत ही सटीक ढंग से आपने बताया कि नेशनल इंटीग्रेशन के साथ एक कल्चरल इंटीग्रेशन भी होता है। सांस्कृतिक कड़ी से पूरे देश में किस तरह से हम जुड़े हुए हैं, इनकी बात आदरणीय राज्यपाल श्री ने बहुत ही अच्छे ढंग से आपको समझाई। मैं विनती करूंगा हमारे खजांची धर्मेश भाई मेहता से कि आपका विधिवत आभार प्रदर्शन करें। आइए धर्मेश भाई। पूरा प्रोग्राम मिनट टू मिनट चल रहा है, एक अनुशासन होता है। तो ये अनुशासन राजभवन में हमने जिस तरह से बरकरार रखा, इस बात की प्रसन्नता हमको है। आइए धर्मेश भाई बताइए। વિજયભાઈ શરૂઆત કરી ગુજરાતીની અને હું પણ એને ફોલો કરીશ. આજનો આ શાનદાર સમારોહ એનું વિધિસર સમાપન થઈ રહ્યું છે, ત્યારે સૌ પ્રથમ માનનીય રાજપાલ શ્રી ભગતસિંહજી કેશિયારીજીની ઉદારતા, સૌજન્યતા અને સંસ્કારિતાનું ગુજરાતી સાંસ્કૃતિક ફોરમ હૃદયપૂર્વક એનો ઋણ સ્વીકાર કરે છે. અમારી ફોરમ માટે આ ઘટના ન ભૂતો ન ભવિષ્યથી છે. માત્ર મુંબઈ કે ગુજરાતમાં જ નહીં, રાષ્ટ્રીય સ્તરે અને દરિયાપારના દેશોમાં પણ પોતાની યશ પતાકા ફરકાવીને કાર્યસિદ્ધિ મેળવી છે. એવા તમામ સન્મિત્ર મહાનુભાવોએ અમારા આમંત્રણને માન આપીને એવોર્ડ અને સન્માનપત્ર સ્વીકારીને તે સૌનો હું નતમસ્તક આભારી છું. આપણે બધા જાણીએ છીએ કે જીવનમાં આવું મોંઘેરું સન્માન જોવાલે જ મળે છે. તમે સૌ આ સન્માન સ્વીકારીને અમારી ફોરમને કાયમ માટે અનુગ્રહિત કરી છે. આ યાદગાર અવસરને શોભાયમાન કરવા માટે રાજભવનનું મેનેજમેન્ટ તથા સ્ટાફ, પારેખ કેટરર્સ, શ્રીનાથ ઇવેન્ટવાળા વિપુલભાઈ મહેતાનો આ સાથે આભાર માનું છું. આ સાથે સૌને ફરીવાર સૌનો હૃદયપૂર્વક આભાર માનું છું. ઓમ સર્વે ભવંતુ સુખિનઃ,
सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नेशनल एंथम के साथ आप सबसे प्रार्थना है, राष्ट्रगीत के साथ हम समापन करेंगे। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय है। वंदे वंदे वंदे। सभी सम्मानित महानुभावों से मेरी विनती है कि राज्यपाल जी के साथ एक फोटो सेशन। हाँ, आप सभी अवॉर्डीज यहाँ पर आ जाइए। आदरणीय राज्यपाल जी के साथ आप सबका एक फोटो, ग्रुप फोटो हो। आ चिरंतन संस्मरणों છે, ચિરસ્મરણીય ઘટના છે। આ ફોટા એ ખરેખર તો આપણે માટે એક યાદગીરી છે। હલો, બધાને નમ્ર નિવેદન છે, પાછળ હાઈટીની વ્યવસ્થા રાખી છે। સર્વેને મારું નમ્ર નિવેદન, સૌ અહીંયા આગળ હાઈટી કરીને જાય પ્લીઝ। સ્ટાર્ટ થઈ ગયું છે પાછળ, પ્લીઝ બધા પધારો પ્લીઝ।